And there it is, images out of Gaddafi Stadium, Lahore. A very happy Australia winning that one. This would be a famous chase known for many, many years for that wonderful innings there by their team. This is how it all went down. We're going to take a look at the match summary here at the DP World Dressing Room. I'm Fakhrianum. This is 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. With me, I've got four fantastic gentlemen. But before I bring them into the conversation, let's take a look at the match summary, how it went down. Australia today won the toss and elected to field. And at one point, it looked like that was perhaps a decision that has gone in favor of England because they put up a very nice stiff total on the board. That was a big 351 for 8, 7.02 runs. But look at that batting card over there and look at what Ben Duckett had done, 165 of 143 deliveries. That's 115.38 strike rate. Just fantastic. And then Joe Root also coming to the party with that 68. And overall, a good effort by the English batting lineup. What people did not know was that this will not be enough. 3 wickets picked up. And then came the reply. The big reply from Australia, the chase. At one point, it looked like England had all control of this game. They were very much in it to win it, and that Australia would go without another victory in an ICC Champions Trophy game. But it was not to be. Tonight was Australia's night. Tonight was Lahore's night. Tonight was Gaddafi Stadium's night. Yes, absolutely fantastic effort there. We're going to talk all about it now. Let me bring in my 4 panelists into the conversation. मेरे साथ 4 मेरे बहुत ही खास मेहमान दोस्त इस सफर में सबसे पहले I'd like to welcome an off-spin bowler, low middle order batsman, and a fantastic broadcaster, Nikhil Chopra. Nikhil, welcome. Good evening. Thank you, sir. Very much, and thank you for joining us, like always. Next up, I've got the legend himself, the fantastic toe-crushing, ball-swinging legend, Waqar Younis. Waqar, assalamu alaikum, good evening. You must be wondering कि कुछ मैं किया ही नहीं, कोई और गाली नहीं, मैं बड़ी तमीज से कर दिया साहब. No, all good. I know, just keeping an eye on that. With that, I've got the cricket royalty himself, the greatest all-rounder of all times, the swing sultan or the sultan of swing, and everything in between, Wasim Akram. Good evening, Wasim. Assalamu alaikum, and welcome back. Thank you. And joining us is a very special guest. He represented India, played for his country, made him very, very proud. I've got Mr. Ajay Jadeja, royalty himself. Your Highness, welcome to the show. Thank you very much for being here. Good. What a fantastic chase there by Australia. Wasim, Susraliyon ne to kamal kar diya. Yes. Oh, by the way, here's another thing. Let's just quickly recap who predicted what. Yes. Right? Waqar predicted England. Bilkul ji. Yes. Nikhil predicted Australia. Ajay Paji predicted England, and you said Australia. So, good on you, mate. Yeah, unbelievable. ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ All right. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 340 ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ 3 over पहले. Yeah. And I think the way they performed, this is what Australia cricket is all about. भाई मैं और वकार हम off the field कह रहा हूँ, off the camera बैठे बात कर रहे थे कि इनके मेन प्लेयर 4 नहीं आए. फिर इन्होंने यंगस्टर को आज हमेशा तक जेक फ्रेजर मैगर्ग को खिलाएंगे. उन्होंने कहा नहीं, इंग्लिश को खिलाना है. उसका सिर्फ 50 ओवर में पहले 100 था, वो भी डोमेस्टिक में, इफ़ आई एम करेक्ट. यस. एंड देन उसकी एवरेज सिर्फ 23 की थी वनडे में. उसको उन पर भरोसा किया, उसको खिलाया और उसने आज क्या इनिंग्स खेली है. और इंग्लैंड ने भी अपनी कॉज को इतना कोई हेल्प नहीं किया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने 2 ज़बरदस्त कैचेस पकड़े. एक शुरू में कैरी ने पकड़ा, एक लाबुशैन ने पकड़ा. इन्होंने 2 ड्रॉप किए और इनकी इनिंग चेक कर लीजिए, इनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए. वनडे में ये स्ट्राइक रेट आपको बहुत कम नजर आता है इतने बड़े 100 के साथ. T20 में आपको नजर आता है जड्डू, बट वनडे में नहीं. वनडे में 130 का स्ट्राइक रेट और ऊपर से ये नहीं है ना कि 40 या 50 रन बनाए. गेम को खत्म करके आए हैं, नॉट आउट आए हैं और पेस बहुत अच्छी करी है इन्हें. शुरू में स्ट्राइक रेट इतनी नहीं थी लेकिन जब जरूरत पड़ी जैसे ही क्लोज आते गए, आखिर में तो उसने ऐसे बल्लेबाजी की है कि और भी अगर 20-30 रन और होते तो वो भी पूरे कर देते. I know, he looked completely unstoppable. तो आपकी जो मिथ है रन्स ऑन द बोर्ड आज गलत होगी ना? नहीं, बिल्कुल गलत हो गई. नहीं, बिल्कुल गलत हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो मैं वही ढूंढ रहा था, मैं हुआ क्या है. आई थिंक इट्स एक तो ड्रॉप कैचेस 2 बताए. एक उन्होंने किया एलेक्स कैरी का 49 पे 63 किया.
फिर मैथ्यू शॉट ने नहीं सॉरी ऊपर नीचे कर गया हूँ मैं, उसने 69 किया, कैरी को 33 पे ड्रॉप किया था इन्होंने, तो 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। फिर आई थिंक ड्यू फैक्टर भी ठीक ठाक था, शायद उससे बॉल कुछ स्विंग भी नहीं हुआ, पहले 2-3 ओवर हुए हैं, शायद के बाद बॉल कुछ स्विंग भी नहीं हुआ एज अ रोड, और विकेट बहुत अच्छी थी हुए हैं, और उसके बाद जस्ट स्ट्रेट एज अ रोड, और विकेट बहुत अच्छी थी, तो चेज करना आसान था। तो मैं देख रहा था, मैं अगर देखें क्योंकि दोनों टीम ने 350 बनाए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि टीम ने खराब खेला है, दूसरा अच्छा जरूर खेल गई है। एक ही चीज नजर आती है मुझे जो इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखें, होता है ना किसी भी टीम में एक होते हैं कि 1-2 ठक्के प्लेयर होते हैं और 4 होते हैं जो अटैकिंग है। इंग्लैंड के जिन्होंने भी रन बनाए ना, वो उनकी टीम में प्रॉब्ली द स्लोएस्ट स्ट्राइक रेट वाले हैं। तो स्कोर 350 देखने में अच्छा लग रहा है, कंडीशंस में वो ही कम पड़ गया। जो स्ट्राइकर्स थे, लिविंगस्टन हो, सॉल्ट हो, ब्रुक जिसका सोच रहा था, उनसे किसी के रन नहीं बने, फिर भी 350 बने। बट यार 350 रन कोई मजाक है? बड़ा रेयर होता है ना, आज तो मजाक ही लगे। बड़ा रेयर होता है ना जब बंदा कहता है कि यार 350 रन, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था इंग्लैंड 375 380 बनाना चाहिए। वो तो 350 रन बने, वो थैंक्स टू जोफ्रा आर्चर जो 21 रन बना गया 10 बॉलों में, नहीं तो 330 पे रह जाते। आखिरी 10 में तो 83 बने हैं, वो 4 विकेटें गिर गई, नहीं तो एक टाइम तो 35वें 36वें ओवर में ऐसा लग रहा था कि 450 के करीब कम से कम पहुंचना चाहिए था। Yeah, it looked like that, but again, it just you never know what a good total can be on what wicket. लोग श्योर नहीं था कि ये ड्यू आएगी, लेकिन अगर उनको ऑस्ट्रेलिया को काफी श्योर था, टॉस पे भी बोला था, प्रैक्टिस की होगी ना 2 दिन रात शाम को अंडर लाइट्स, दे मस्ट हैव फाउंड आउट के बारे में ड्यू पड़ रही है। हाँ, आई गेस उनको आइडिया था, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो ऊपर के 2 बैटर्स थे ना शुरू वाले, उन्होंने थोड़ा लूज शॉट खेले। अगर वो विकेट्स थोड़ा सा हाथ में रखते तो शायद ये 350 से ज़्यादा हो सकता था। पिच जो थी ये 350 से बेहतर पिच थी, इससे ज़्यादा इस पर रन ज़्यादा होने चाहिए थे। लाहौर की पिच मैं 35 साल से मैं जानता हूँ, देखता हूँ, वहाँ पे हर चीज़ खेले भी हैं। मैंने इस जैसा रोड नहीं देखा, इस जैसी फ्लैट पिच मैंने नहीं देखी। आई मीन नाइटमेयर फॉर द बॉलर, और सोने पे सुहागा, फिर ऊपर से फिर ड्यू पड़ गई तो बेड़ा गर्क। A good toss for Smith to win and a good call to bowl first. Yeah, a good call, a bold call as well. I mean, according to me, I thought, if you have, it's simple rule कि अगर conditions अच्छी हैं, सामने वाली टीम ने 4 ही गेंदबाज खिलाए हैं, तो आप क्यों वो शाम को चांस लेते हैं? ड्यू आ गई, अगर नहीं आती तो वो फिर आप छोड़ देते हैं कि कहीं एनालाइज करके कि होगा नहीं होगा। 90s में जो 5वां बॉलर होता था, वो 2 आप पार्ट टाइम में खिला सकते थे। पाकिस्तान टीम में हम 90s में मलिक और आमिर सुहेल करते 10 ओवर। आजकल क्रिकेट में आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए। छठा वो हो सकता है जो 2-4 आपको ओवर दे दे अगर किसी बॉलर का दिन खराब है तो। सो ये एक लर्निंग है सबके लिए कि आपको प्रॉपर बॉलर खिलाने पड़ेंगे आजकल की वनडे क्रिकेट में। We've got an interesting stat for you. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. This is the highest chase graphic. Look at that. Check that out. You've got all these highest successful chases by Australia. और ये जरा देखें आप. This tonight is the second highest chase that they've done. Yeah, Look at that, the one that they've done against India and Mohali, and then here tonight in Lahore. Fantastic. And this is the highest chase in ODI cricket in ICC 50 over tournaments. No, by Australia. Yeah, no, Yeah. generally Yeah, I'm saying yes, this generally, yes, today. that is correct. Yes, जो yeah, हुआ है, yeah. absolutely. Yeah. And then there's another one in Lahore. If you look right at the bottom, Wasim. So it's really a very good and interesting way how they've gone about I their think business the today. crowd. First of all, let me congratulate Lahore and Yes. Lahoreites. You बिल्कुल. made us proud. It was a pack house. There were 2 टीमें खेल रही जिसका ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान से. Australia, England, but Look at the crowd. Look at the House full crowd. today, That is Wasim. that is Look at that. Lahore. Yeah, This is Lahore. Lahore. The people of Lahore, Zinda Dilan Lahore, the city of gardens Lahore, and इनका जो पूरा जोश, जज्बा, मोहब्बत देखें क्या ज़बरदस्त चेहरों पे खुशियाँ हैं. That's why पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट हो हाईएस्ट लेवल की, it's good for these people. This is important for us as a nation. So well done, everyone, people of Lahore. Look at that, just amazing this is, images there. yeah. And you know what is special about that, Wasim, is that Pakistan नहीं खेल रहा था. I know. This was an Australia-England game, and look at the crowd turnout there. I think I suppose अब एक सजेशन है, पीछे ना पड़ जाना कि कराची वालों को थोड़ा जाके कोई मैच मूच देख लो यार. Good point, Karachi. हुन बचो. Yeah, start seeing your social media, start monitoring. But crowd अपनी जगह, maybe that
again leaves you bewildered. Why Pakistan is not playing in Lahore in this ICC Champions Trophy? Yeah, we discussed it on our first show Yeah, I know, कि but आपने नया आज स्टेडियम देखने के बाद बनाया और ज़रा थोड़ा मुझे है, जो है ना नया दुख हो रहा है कि स्टेडियम why we're not बनाया है, playing there. कैपेसिटी बढ़ी है और लाहौर के क्राउड का पता है कि वो आता है, सो आपने पाकिस्तान का मैच वहाँ पे रखा नहीं. I don't know who decides this, but it is beyond us, all of us. Absolutely. Well, we're going to take a break here on the DP World dressing room. When we come back, there's more on the other side about this famous chase by Australia. Congratulations to Australian fans around the world, and we'll see you on the other side of this break. Welcome back to the DP World dressing room. मैं हूं फखरान. आप देख रहे हैं 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. लाहौर से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया है. बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला हुआ है आज दोनों टीमों के दरमियान, and we are just discussing about that. What a performance here by John Inglis. He was just fantastic. Josh Inglis. एक सवाल मैंने ये पूछना था वकार कि वो स्मिथ से एंड में उन्होंने पूछा सवाल कि वो जॉन इंग्लिश का इंग्लिश पासपोर्ट है अभी भी कि नहीं है. उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, लेकिन वो जा कहीं नहीं रहा. इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन? उसको जाने नहीं देंगे या उसके बाद दो डुअल नेशनैलिटी है भाई के पास? I think उसका वो रातों रात पासपोर्ट बनेगा. They're not letting him go anywhere. Played a superb knock. I mean, जिस पोजीशन में थे 2-27 पे 2 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ही टीम है मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की सिचुएशन में हो. अभी वसीम भाई बाहर पूछ रहे थे या जड्डू को ये इस तरह का क्यों खेलते हैं. मैं कि जिन्हों दी कबड़ दे विच 6 वर्ल्ड कप दी ट्रॉफियां पई उन्होंने इंज ही खेलते ने. दिस इज हाउ दे प्ले. Fearlessness is the word. Fearless, क्योंकि उनको ये नहीं है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा. डर उन नेशंस को होता है कि जिन्होंने कभी जीता ना हो या जो कभी जीतती हो, पीछे हो. या ऑफ कोर्स So डर कैसे खत्म हो सकता है? Just I'm asking all of you guys. उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया था कि बताया था अपनी कौम को, बताया था कि दिस इज व्हाट वी गोना डू एंड वी गोना चेंज द फेस ऑफ क्रिकेट, एंड दे डिड. तो आई थिंक यू नो दैट्स द ओनली वे. और तो कुछ नहीं समझ आती. और सिक्योरिटी और श्योरिटी दिए जाए प्लेयर्स को कि दिस इज व्हाट यू गोना गेट एंड जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले. गिव देम द अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग इनफ to get to the stage. So आजकल की क्रिकेट में guys, जड्डू, my question is cricket nowadays, कितना एक प्लेयर को चांस देना चाहिए? ये हमेशा मैं भी ये सवाल आता ही है ना अपने मन में भी, और हमारे साथ भी हुआ है लाइफ में, ऐसा नहीं है. तो आई थिंक सिलेक्शन और रिजेक्शन में यही अंतर रह जाता है ना. अगर आप बिलीव करते हो, कोई कोच है या कोई कैप्टन है, किसकी चलती है, हर जगह अलग अलग चलती है. अगर आप बिलीव करते हैं किसी खिलाड़ी में और आपने उसको सिलेक्ट किया है, तो फिर आपको उसको उतना रोप तो देना चाहिए कि वो सक्सेसफुल होगा. कब होगा? मतलब 10 मैच तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मिलेंगे आज के जमाने में. हमारा प्लेयर है साइम अयूब, उसको 10 से ज्यादा मिले हैं. नहीं, किसी को मिलते हैं, ऐसी बात. मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको अपॉर्चुनिटी दी है. जो तरीका की बात हो रही थी, मैं मानता हूँ उसमें तरीका यही चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही विनर्स हैं. तो आपने पहले दोपहर को बात की थी ना ये कि ऑस्ट्रेलिया हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हार और जीत को जब आप और मैं और हमारी आवाम और सब इक्वली ट्रीट करें, तब जाके ये बात बनेगी ना. क्योंकि अगर हम जिस दिन जीतते हैं, हम खुद भी, अपनी टीम भी जब जीतती है, तो हम उसको दुनिया के सबसे बड़े बना देते हैं. वो कहते हैं ना अर्श पे या फर्श पे, there is no in between. हाँ, तो फिर वो you can't have it all. Well, we were talking about the heroics by Inglis, but let's not forget that there was a very important innings by Short, who laid the foundation, and then Carey was actually carrying the momentum at one point when Inglis was looking that he was holding back. But let's look at what Short did. This is Short's stats on your screen. This was his innings today. This is how he set up the chase. किस तरीके से जब बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 विकेट गिरने के बाद भी जब प्रहार किया, बैट के बीच में बॉल लग रही थी, गेंद को अपने तरफ आने दिया. वो भरोसा था, विकेट अच्छी थी, 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद बॉल सिलेक्शन कमाल की थी. एंड आई थिंक जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे थे, ऐसी शॉटें मार रही थी, ये शॉटों का कॉन्फिडेंस डगआउट तक जा रहा था. सही, that is, but it was a fantastic innings. And then of course Carey, चूंकि Carey ने इसीलिए तो उसका नाम रखा है कैरी. Okay, Carey करता है ना वो सारी innings. वो inning Carey कर रहा था actually. At one point it looked like that Carey was in the role what जो end में English ने की थी. But look at this. This is Alex Carey. This is what he did. And they were 4 down, Vicky. Remember when? Yeah, when they came in to steady the ship and all that. Just a fantastic innings. Yeah, left hand, right hand जब क्रीज पे हो तो आसान नहीं होता बॉलिंग करना, फिर ड्यू फैक्टर भी हो. आई मीन हम सबको मालूम है हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट में. टेस्ट मैच में
ये वो रोल अदा करता है जो गिलक्रिस्ट किसी ज़माने में अदा करता था, आके टीमों को बिल्कुल तबाह कर देने वाला नंबर 5-6 पे बैट्समैन है टेस्ट मैच क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में इनके पास अब ऐसा है कि 3-4 जो है वो विकेट कीपर भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से ये खेलता है, आई मीन दैट वाज फैंटास्टिक, ग्रेट टेक्निक, ग्रेट हैंड्स, और उस टाइम ज़रूरत भी इस चीज़ की थी कि रन बॉल जाया जाए, इसका काम था रन बॉल जाना, और फिर दूसरी तरफ से वो जो पार्टनरशिप थी वो लगी, और जिस तरीके स्ट्राइक रेट्स वाज वंडरफुल। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आजकल फिनिशर्स, गेम के फिनिशर्स होने जो ना बड़े जरूरी हैं। इंग्लिश एक्चुअली जो उनके हेरोइक्स हैं आज के, ही फिनिश्ड द गेम, वरना कैरी भी लाइक कैरी गॉट कैरिड अवे इवेंचुअली, ही वाज ट्राइंग टू पुल, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू हिट एवरीथिंग आउट, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फिनिश गेम्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वसीम। Yeah, it is. I mean, 4 विकेट डाउन हो तो हमारे साइड के लोग हो, I'm not criticizing my No, I know what you're saying, yes. they ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, वो प्रेशर फिर आप पे बिल्ड होता है। इन्होंने स्कोर कार्ड से कहते हैं चलता रहना चाहिए, इवन ठीक है अगर 10 की एवरेज है, 10 तो ना हो, कम से कम 6-7 तो होता रहे। सो उससे फिर आपको बाउंड्री मिल जाती है, बॉल गीला होना शुरू हो गया, पार्टनरशिप लगनी शुरू हो गई, इंग्लैंड टीम बैकफुट पे आ गई, फिर 2 कैचेस भी ड्रॉप हो गए। सो या इट्स अ विन-विन। कम ऑन ऑस्ट्रेलिया। एक चीज जो है ना ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे खूबसूरत है, आई मीन इनके जितने भी ग्रेट्स भी आए हैं ना, ग्रेट प्लेयर्स भी आए हैं, आप उनको देखेंगे कि वो उन्होंने नंबर 5 या नंबर 6 से शुरू किया, स्टार्ट ऑफ रिकी पॉन्टिंग को ले लें आप, 6 पे 5-6 पे नीचे शुरू कर, नीचे लैंगर ने भी नीचे शुरू किया। इनके जो प्लेयर्स थे बड़े 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 नाम, उन्होंने नंबर 5 से शुरू करते थे, दे गिव देम कॉन्फिडेंस, और जब व्हेन दे फील कि ही इज, जो कहते हैं ना पक गया है, then they move him either at number 4 or number 3, and then he becomes great. All right, with that, it's time to take a look at the fall of wickets, brought to you by the Tamasha app. Yes, Doctor. कमाल का कैच है, पहली विकेट जरूर है, आखिरी में याद नहीं आता, लेकिन मैच की शुरुआत ना यहाँ से हुई थी। ये 2 आउट हुए, फिर राशिद लतीफ, माफ कीजिएगा, जैम्पा ने ये तीसरी विकेट निकाल के दी थी। यहाँ तक तो फिर भी एक गेम चल रही थी, फिर यहाँ से फिर एक और कैच। अगर टीम जीती है, वो कैचेस विन मैचेस की बात है, वो यहीं देखने को मिलता है। या That also LBW. तो लास्ट ओवर में जाके आउट हुआ। एक लिविंगस्टन की अभी विकेट आएगी, वो देखिएगा, वो बड़ा उम्दा कैच किया उन्होंने बाउंड्री लाइन पर, वो भी एक गेम चेंजर था, क्योंकि हालांकि 3-4 ओवर रहते थे, वाज डिफरेंट देन। Yeah. That was a good catch too. I thought, again bowled by Archer. Yes, I think पेस जिस तरीके से चली, आदिल रशीद के ऊपर बहुत कुछ निर्भर था। यहाँ एक साझेदारी के बाद फिर वो कवर्स में वो कैच पकड़ा लिविंगस्टन में, कॉटन बोल्ड, एंड इस तरीके से अब यहाँ पे अप द एंटी चल रहा था कि गेम जल्दी से खत्म करने के लिए फिर विकेट गिरी। All right. There you had the fall of wickets brought to you by the Tamasha app. Let's talk about the English bowling overall, because अभी हमने उनकी ये wickets जो हैं वो करते हुए देखी है। निखिल, do you think that today England were missing that extra spinner, या आज कोई स्पिनर का काम था नहीं ऐसे यहाँ पे? extra fifth bowler. Yes, fifth bowler actually to be. अगर आप आंकड़े देखो ना, बड़ा रेयर होता है when you got guys or somebody bowling at 145, 147, and जो जितनी तेज डाल रहा था उनकी उतनी ज्यादा पिटाई हो रही थी। आदिल रशीद ने अपने 10 ओवर में किस तरीके से गेम को कंट्रोल किया, लिविंगस्टन बहुत अच्छी तरीके से वो वेरिएशन कर रहे थे, एक जगह पे डाल रहे थे। सो आई थॉट गीले बॉल से मीडियम पेसर को ज़्यादा पिटाई पड़ी है। विद द रिस्ट स्पिनर ऑफ कोर्स इट गेट्स टफर, बट जो वसीम भाई ने कहा था, एक आपके पास और 5वां गेंदबाज चाहिए, क्योंकि जब आपको एक 5वां गेंदबाज चाहिए मैच जिताने के लिए ऐसी विकेटों पे, वो आपको ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि अगर इतनी अच्छी विकेटों पे आपके 5 बैट्समैन रन नहीं बना के दे रहे ना, तो छठे वाला भी फिर जिताना आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। सो दे डेफिनेटली, टू आंसर योर क्वेश्चन, फॉर मिसिंग दैट एडिशनल बॉलर। All right, with that, we're going to take a break here at the DP World dressing room. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. All right, welcome back to the dressing room. We do apologize for the technical issues that we are facing today. It seems like somebody is conspiring against the DP World dressing room. We're trying to find out. We have our people on the ground trying to look for it. Right. वसीम और वकार ने अपने जासूस भेज दिए हैं पाकिस्तान में। जो भी कर रहे हैं, it's not gonna work. और निखिल भाई ने अपने भेज दिए जासूस। But I heard the problem was in the air. जमीन पे जाके क्या करेंगे? हाँ, ये भी है प्रॉब्लम। कैसे the problem is in the air?
हवा में है कहीं प्रॉब्लम। ये ड्रोन शो से तो नहीं हो रही? मुझे नहीं पता सर ये किस शो से हो रही है, बट एनीवे इट इज व्हाट इट इज। लेट्स टॉक अबाउट बेन डकेट। वी वर टॉकिंग अबाउट बेन डकेट। हमने कोशिश की थी, आपने बहुत लंबा जवाब दिया था और हम टेक्निकल उसमें चले गए थे, बट ये राजे देंगे क्योंकि उसकी पारी इतनी लंबी थी, 165 रन बनाए यार बंदे ने। वो देखो आप स्ट्राइक रेट देखें, 115 पे आज स्कोर किया है वकार भाई। ऐड चेक करो जरा बैटिंग। और दूसरी बात ये कि उसके साथ बैटर्स आउट होते जा रहे थे, तो उसके बावजूद अगर 116 का या 116 का स्ट्राइक रेट उसने मेंटेन किए, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ good batting. And he's got the hang of, he likes Pakistan. Yeah, he's got 200 टेस्ट मैचेस में भी इसने पाकिस्तान को भड़काया। वनडे में भी 100 किया हुआ है, बड़े बड़े 100 करता है। ये बड़ा इम्प्रूव, वन ऑफ द फ्यू इन रीसेंट पास जो कि बहुत इम्प्रूव हुआ है एज अ बैटर। Yeah, there you go. Ben Duckett, what a fantastic innings there by him. He still plays for Northampton, North Ends. But does. nobody goes to Northampton. Nobody. Why? Even birds fly upside down. Yeah. You know why? ये क्यों? Because there's nothing to see. Suburbs are nice, but the city is not the best on the ground. I mean, loved playing there. And also Joe Root today played a really nice innings. Joe Root was in the action as well. आपने ब्रेक में मेरे से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन यही था मेरा, जो रूट का जो है ना, इसकी स्ट्राइक रेट जो अगर आप देखें, हार गए इसलिए नहीं कह रहा, बट हम सेइंग ये इंग्लैंड की तरफ से एक रोल्स होते हैं टीम के, इनका वो उन्होंने रोल अदा किया है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे वहाँ की टीम में कोई हमारा खिलाड़ी इस स्ट्राइक रेट से खेलता है और हार जाते हैं, तो वो फिर इनिंग खराब नहीं, वो बंदा ही खराब हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आई थिंक ही इज प्लेड हिज रोल, बिकॉज़ 351 is not a small total. Like, 2 विकेटें गिरी थी जब अंदर गया। तो वही कह रहा, कई बार हालात ऐसे होते हैं और एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है इसीलिए टीम में कि भाई संभाले टीम को, और उसने अपना काम तो कर दिया। बिल्कुल, और मॉडर्न ग्रेट है, नो डाउट। टच नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपने उधर तारीफ की थी आज जब अपन बैठे थे, फैब 5 की बात कर रहे थे, उसमें he is a world champion, there's no doubt about it. No question about it. ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग कार्ड जरा देख लेते हैं। वकार, take us through this bowling card. This is how the Australian bowling went down. All yours. A very young bowling lineup. I mean, उसके बावजूद I mean, no pace भी नहीं थी विकी। पेस यूजुअली ऑस्ट्रेलियन ले आते हैं, एक आधा पेस वाला निकल आता है 140 प्लस वाला, ये सारे 131 132 वाले थे। वही मैंने दोपहर के शो में भी यही बात की थी कि इनकी जो बॉलिंग है ना वो वीक है। दिस इज अ वीक बॉलिंग लाइनअप, और ऊपर से आप 5वां बॉलर जब नहीं खिलाते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको इस तरह के रन्स होंगे। इवन दोनों टीमें, दूसरी टीम में, मैं इंग्लैंड की टीम में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि इतने हारे हुए पीछे से आ रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। ये लग ही नहीं रहा था कि ये वो प्लेयर खेल रहे हैं जो हम में भी आज से कोई 4-6 महीने पहले देखते थे कि इतना कंट्रोल से खेलते थे। दे लुक वेरी वेरी ऑर्डिनरी। तू सारे व्हाट्सएप मैसेज आज ही देख लेना। मैं तो इधर चिड़िया बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था मैं। बतख बनाई है आज, देखे मैंने। आपने देखी नहीं मेरी बतख कैसी है? चेक करें ये कैसी बतख बनाई है मैंने। That's not a बतख। Okay, whatever you, it's my imagination. I can do whatever I want to do. Okay. And जी मैंने तुसी discourage ते demoralize कर देने दो। I'm as a host, your job is to listen to us. Really? Yeah. All that you guys say I have to listen to. Oh my goodness me! I need to be paid 10 times more in that case if I have to listen to this that all the time, everything. चलो कभी कभी सुन लिया करो। What about us? चलिए कोई नहीं, बस कभी कभार कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाती हैं, कर लेनी चाहिए। All right, so with that, I think we should get ready for #Ask the Room, because that's our favorite segment. #Ask Room, and then we have some I think branded segments that we need to get out of the way as well. So ये हैशटैग आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, #AskRoom। याद रहे कि आपके सवालात और हमारे मेहमानों की जवाबात, and we'll take your questions, they will answer देखो them. उनको ये बता दो, मोस्टली हम एक्स देखता हूँ मैं दूसरे नहीं It's देखता। X basically. I keep an eye on Facebook and Instagram, my own account, and I'm sure you're just flooded as well. But where Waqar is really into his account. He's like all the time looking in his account. Bank account. Always looking at his account. Bank account. Waqar's looking at the bank account. Bank account. And Nikhil, I know Nikhil is a proper disciplined man. Yeah. He absolutely is totally clueless of Ask the Room. What is exactly. वसीम भाई अभी क्या कह रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे कि ये पर्थ में क्या बैग पकड़ा गया, क्या होता उसमें? हाँ, न्यूज़ आई थी। अच्छा, और guys, I have to tell you something. Wasim Akram
don't fall for his age. He's a proper Gen Z boy. Yeah, है ना, no doubt. टोटल जितना सोशल मीडिया पे जो ये स्कैनिंग करते हैं और नजर रखी होती है, आज अभी ये जो टेक्निकल एरर चल रहा था उसके बीच में इन्होंने हमें खबर बताई कि पर्थ एयरपोर्ट पे किसी के चेक इन सामान के अंदर से 1.1 बिलियन डॉलर्स पकड़े गए। तो वकार भी कहते हैं भाई तुसी चेक इन कराया सी अपना मैं क्या तुझे सामान पर्थ वाया पर्थ भेज रहे थे? उधर से आ रहा था सामान। एंड देन अजय जडेजा हैड अ वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि इमेजिन कि बंदे के पास कितना कैश होगा कि उसने कहा चेक इन करा दे ये वाला बैंक। ठीक है चला गया, ठीक है, नहीं गया तो कोई मसला नहीं है। सोचो हाथ में क्या ले जा रहा होगा। All right, folks, this is the cricket ball that will be signed by all our 4 special guests and will be given to whoever is selected by us unanimously as the best question or comment for hashtag Ask the Room. So we're going to take a break here at the DP World. And this time it's a break, not a technical fault, but an actual break in the DP World dressing room. We'll see you on the other side. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Alam. This is 10 Sports. With me in the DP World Dressing Room, I've got 4 fantastic gentlemen. I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, the great Wasim Akram, and Mr. Ajay Jadeja. And it's been a great discussion about the Australia versus England game. अगर अब वक्त हो रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता चलें #AskTheMore की तरफ, और फिर एक विनर को मिलेगा हमारा ball, which has been signed, sir. Either Jadeja bhai. The ball is signed and all set to go. Can I ask Jadeja bhai, can you put it on that truck over there, the DP World truck, right? Sign on वाला? top? ये sign वाला, please. नहीं दोस्त, मेरे पास ये भी था ना इसलिए। नहीं आप उसको इधर ही रखिएगा, उसको वहाँ छोड़ दीजिएगा, please. पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा अजय के अभी बारे सवालों में। की बात नहीं आई, but there you अच्छा, go. वो रे। Mr. Ajay Jadeja has just put that. Now this ball will be dispatched by DP World to the winner of the right questions. But before we get cracking on that, it's time for take a look at the DP World Beyond Boundaries initiative. Now, the DP World Beyond Boundaries initiative, दोस्तों, एक बहुत ही important initiative है, because this is a partnership between DP World and ICC. And with this initiative, the actual aim is to make sure that cricket equipment is delivered to places where cricket needs to be promoted, where there are underprivileged people who want to play the sport but can't afford the equipment. And so every time a team scores 100 runs, 10 kids are committed for that. So today it was a 10 kids for every 100 runs. आज महंगा पड़ा है। आज अच्छा पड़ा है. I mean, we're DP really को महंगा happy. पड़ा है। Yeah. Because it's करना चाह रहे हैं तो बेहतर है। That's good. That's it's good. more more to the remember. merrier. Yeah, the more the merrier. So altogether, 300 for both. So total 700 runs put together, and so that's 70 kids that are going to go out. So well done, DP World. This is a great initiative, and that is the DP World Beyond Boundaries initiative. And with that, it's time for the DP World Dispatches of the Day. वैसे आज तो काउंट करना मुश्किल हो गया था कि कितनी बाउंड्रीज लगी हैं। इंग्लैंड की तरफ से 28 चौके 7 छक्के, और ऑस्ट्रेलिया ने तो फिर इंतहाई कर दी। उन्होंने कितने मारे मैंने लिखे हुए थे इधर, 36 चौके 50 ओवर में 9 छक्के। That is why that they won this game. It was a belter of a pitch. और बैटिंग पैराडाइज थी जिस तरीके से दोनों तरफ पिच के। थोड़ी बॉलिंग जरूर गंदी हुई, लेकिन उसमें कई इतने खूबसूरत शॉट थे कि अनबिलीवेबल। लाहौर पिच ने आज किसी को मायूस नहीं किया। गेंदबाजों को जरूर किया है। And yeah, बड़ा अच्छा कमेंट था। वकार ने कहा कि आज लाहौर की पिच ने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। अजय ने कहा नहीं, गेंदबाजों को तो किया है। गेंदबाजों को तो ठीक ठाक डिसअपॉइंट किया है, दिल तोड़ दिए हैं आज। गेंदबाजों को तो पिछले 300 साल तो कर रहे थे। सारी गेम ही बैट्समैनों की है बेसिकली। यार मैं एक बैट्समैन रैकेट को एक है, चांस मैंने मिलता है। स्ट्रेट करना है, जो एक स्टैट बड़े अरसे से सोशल्स पे चल रहा है, लोग उससे इम्प्रेस भी हो रहे हैं कि वसीम अकरम ने अपने करियर में सिर्फ 12 छक्के खाए हैं वनडे में से, 9 सचिन ने मारे हैं। ऑल रॉन्ग। 99 तक से पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है छक्कों का, किसने मारे हैं किसने नहीं मारे। 99 के बाद मैंने 102 वनडे खेले हैं, उसमें मुझे 15 छक्के पड़े हैं। सो उससे पहले का रिकॉर्ड था ही नहीं, ना किसी ने रखा है ना किसी के पास था। सो वी डोंट नो। फाइलें जला दी गई हैं। ये किसने लिखा है? किसने किसने लिखा है? ये वो बड़े कोडर से हजार किसी ने ट्वीट पे मुझे लिखा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ किन्होंने लिखा है। ये तो कमाल हो गया ना, 99 से पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है। आप कुछ भी क्लेम कर लें। उसके बाद 15 लगे हैं। पिंकी
फिर 96 था, सारे नु किस तरह पता है? Oh my goodness, that's a good one. नहीं अजय पाजी, that's brilliant. नहीं, this is true. Yeah. उससे पहले की भी कई चीजें सिर्फ बनी हुई हैं। वो जो दुनिया में परसेप्शन है उस दिन की, वो नहीं है। Right, right. मैं और विकी जाएंगे, हम एक वर्ल्ड टूर करेंगे और उस वर्ल्ड टूर पे वो परसेप्शन सारी वापस करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें इतने ख्वार नहीं करना चाहता तो दुनिया ख्वार कर रही है। आखिरत में दुनिया में खबर हो गई। ऐसे ही चलाएंगे। All right, with that, it is time for the DP World Smart Performance of the Day. Let's take a look. That's fine. There you have it. आई थिंक इंग्लिश ही हो रही है, मेरा मतलब है चारों तरफ। या ही वाज जस्ट अमेजिंग। दोनों इनकी पार्टनरशिप, आई मीन जितनी अच्छी इस सिचुएशन में, चाहे जितनी भी अच्छी पिच हो, आई मीन फिर जितना भी बॉल गीला हो रहा हो, जितना भी गेंद गीला हो, इस तरह की इनिंग्स 4 आउट होने के बाद और इस तरीके से ये पार्टनरशिप बिल्ड करना, दैट वाज वंडरफुल। Ajay Bhaijan, I have to ask you this. Interestingly, हम लोग ये बात कर रहे हैं गीले बॉल की कि अच्छा जी वो बॉल जो है वो ना सीम करता है ना स्विंग करता है, बिल्कुल सीधा आता है, बट क्या बॉल स्किड करता है थोड़ा सा? स्किड करता है, बट नथिंग हैपेंस, पेस डजंट मैटर, यू कैन आस्क द बैटर्स। Yeah. पेस इनको नहीं तंग करती, उन्हें पता है कि बॉल ने सीधा ही आना है। वो सीमेंट की तरह, जैसे हम बैटिंग करते हैं सीमेंट पिच पे, कंक्रीट पे, वैसे आता है। सो एज अ बैटर ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि ना इसने अंदर आना है ना बाहर निकलना है, पेस यू इजीली कंट्रोल। नहीं, आई थिंक सीधा स्किड होके ही आ जाता है ना। और एंगल की बात कर रहे थे हम सवेरे भी, तो जब गीली चीज हो गई है तो जब पड़ती है, फ्रिक्शन ही नहीं है, तो वो उतनी तेजी से आता है। और हम जब भी सुनते हैं, हम यहाँ पे भी आप सुनते हैं कि बॉल स्लो आ रहा है, शॉट मारने के लिए आपको, अगर टाइमर है आप, तो आपको पेस चाहिए होती है। तो जिस भी पेस से आप गेंद छोड़ते हैं, बैट्समैन के लिए बड़ा आसान हो जाता है। और वो पता है ना स्पिन होगी, ना स्विंग होगी, ना सीम होगी, तो फिर So मैं फिर एक चीज कहना चाह रहा हूँ, because sometimes you extend your arms, especially अगर कोई लेंथ बॉल हो जो थोड़ी पीछे पड़ी हो, आप पुल करना चाह रहे हो, it rushes in, doesn't it? जो थोड़ी सी स्किड करके। I think pulling becomes slightly difficult, especially for people who are trying to pull it down. और fast ball और also. क्योंकि अगर आप कल देखें, कल शाम को भी अगर नबी ने गेंदबाज थे अफगानिस्तान के, उन्होंने पहली गेंद दी थी या दूसरी गेंद थी शायद, लेफ्ट हैंडर पीछे गया, नॉर्मली उस जहां पे गिरी है ना, वो आप सोचते हैं कि आराम से पुल हो जाएगा कि थोड़ी ऊंची आएगी। गीली होने के बाद एक चीज होती है कि बाउंस कम हो जाता है, तो वो स्किड करके नीचे रहती है और जल्दी आ जाती है, तो आप अक्रॉस खेलने में मुश्किल होती है। पुल लेकिन अगर आप पिक करते हैं वो आसान हो जाता है। Pickup shot becomes easier, but the full extension of the arm that becomes a little challenging. Yeah, you need to change the game like how bowlers need. Because वो अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, हमने 2-3 जगह पे उन्होंने पुल मारा है, वो पुल भी अजीब सा मारा है और यूं करके कलाइयां जो है ना अचानक कर दी है। वो स्किट जो कर रहा है उसकी वजह से बाद में आई थिंक इवन लास्ट जो छिक्का मारा है उसने मैक्सवेल ने, वो इधर को गया है और वो किया उसने पीछे, मगर वो इधर नहीं मारा पुल, उसने यू पिकअप शॉट पीछे की तरफ करता पर एक टीम जो फिर डिफेंड कर रही है स्पिनर, ये तो कप्तान की भी भाई फिर जिम्मेदारी हो ही जाती है ना कि जितनी जल्दी आप अपने स्पिनर के 10 ओवर करेंगे तो वो चांस है ना विकेट लेने का, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो, शाम को आप हल्का सा आइडिया लगा लेते हो कितने बजे तक ओस आएगी, कितने ओवर वो पड़ेंगे, तो फिर विकेट आपको फिर स्पिनर के ओवर निकाल दीजिए, विकेट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। यू हैव बीन कोच gazillion times. The question is इसका कोई सारे दुआले मैं सारे रिकॉर्ड तेरे रखे ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मैं कहना जाना है नहीं, ये सीख सकता है यंगस्टर या कोई बॉलर्स कि अगर बॉल ओस पड़ा है या ड्यू पड़ी है, गीला हो गया है, तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक जमाने में करते थे हम लोग, हम लोग बाल्टी रख लेते थे यार रिमेंबर यार, और उसके अंदर बॉल फेंक देते थे तो वो साबुन की तरह ही हो जाता था बॉल, तो वो फिर अब हार्ड होता था उसको फिर उसको थोड़ा सा ना टॉवल रखते थे ड्राई करके कि उतना ही हो जो मैच सिचुएशन की तरह उसको हम कोशिश करते थे। बट इट इज़ हार्ड, चाहे आप जितना मर्जी कर लें, आप करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है। और वो फिर अगर बैट्समैन तैयार है, यॉर्कर बिल्कुल नहीं होता, उससे फुल टॉस हो जाती है। यॉर्कर की तरफ तो नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए ना, गीले बॉल के आपका साथ यॉर्कर गिरेगा ही नहीं, क्योंकि आप या फुल टॉस हो जाएगा, वो भी इजी पिकिंग है, और लेंथ गिरी तब भी इजी पिकिंग है। सो बेसिकली क्या होता है फिर, अगर तो आप लकी होंगे कि अगर आपके जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना, अगर वो बड़ी हैं तो थोड़ी सी बचत हो जाती है। फिर आप स्क्वायर बाउंड्रीज को यूज़ करते हो कि मैं बैक ऑफ द लेंथ मारता हूँ, तो जिस बात की जडेजा बात कर रहा था ना कि वो जो स्किड करके थोड़ा सा कई दफ़ा तेज़ आता है, तो आप जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं उनके फील्डर्स आप रख के
फिर आप बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हो कि मुझे इधर मारो, सामने नहीं फिर खानी, क्योंकि सामने बहुत आसान होता है. Yeah, it becomes. Good point. And with that, it's time for the fastest delivery of the day, brought to you by Food Panda. But there you go. Look at that. Expected था नहीं? Expected. Wood था. से. Yep, absolutely. Really fine. And with that, it is time to discuss the DP World Smart Stat of the Day. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आज का Smart Stat. So, Mark Wood, all balls bowled by Mark Wood in the first 4 overs were 90 miles per hour. That's quick, 90 man. miles is what? 148 kilometers an hour. Something like that. Yeah. I don't know so the that exact, is but yeah. that is serious pace. Yeah. But भाई नहीं also ये look दोनों at कह रहे हैं the serious modern pace day है। cricket. It's आप not जो करते pace. थे लोगों के साथ It's वो the क्या करते थे? movement. Yeah. It's not the pace, but it's the movement. भाई, sorry. Continue. नहीं जो हमेशा वसीम भाई कहते आए ना, अब आज की मॉडर्न डे क्रिकेट जितनी अच्छी विकेटें भी हो रही हैं, क्लासिक थिंग, एक बॉलर ने 90 माइल पे बॉल डाला है, उसको विकेट नहीं मिली और उसकी टीम लूजिंग एंड पे थी. इट्स द मूवमेंट, इट्स द स्किल सेट. एज अ क्विक बॉलर मे बी वो मूवमेंट ज्यादा खतरनाक साबित होती है नया बॉल. Yeah, absolutely. With that, we're going to take another break right here on the DP World Dressing Room. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. And when we come back, it is time for 2020. hashtag Ask the Room. See you on the other side. And that is the ball that is signed by our panelists here in the DP World Dressing Room, जो कि आपसे कुछ देर बाद एक लकी विनर को दिया जाएगा हैशटैग आस्क द रूम के हवाले से. It is the DP World Dressing Room and you're watching our continued coverage of the ICC Champions Trophy. हैशटैग आस्क द रूम का सिलसिला शुरू करते हैं. सबसे पहले जिसपे मैं हंस रहा था, वकार आप पूछ रहे थे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ. खिचड़ी आपका अहमद 786 आपका हैंडल है, खिचड़ी एक्स के ऊपर. आपने कहा है looking at the atmosphere of the dressing room of DP World and the condition of Waqar Yunus, it seems like this. रजिया गुंडों में फंसी. ये एक्चुअली उर्दू में लिखा है. खिचड़ी वैसे कल देना सिर्फ पंजी सवाल भेज दिए. बड़ा ये सवाल ये कमेंट है, अच्छा कमेंट है. Very good, funny. I like it. रजिया गुंडों में. सो खिचड़ी को ये अच्छा इसका इनका नाम लिखना चाहिए हमें, खिचड़ी का. Lovely name. अच्छा जी, इसका जवाब नहीं लेना. गुंडे रेडियो से तुझे जवाब दे दो. क्या गुंडों में फंस गए? पहली बात तो क्या आप रजिया हैं और क्या आप गुंडों में फंस गए? ना मैं रजिया हूँ और ना है गुंडे ने. अभी पिक्चर बाकी है. धमकियां पड़ रही हैं. Why so serious? दोनों बंदे ने लाने पड़े हैं अपने नाक. नहीं मैं अब कुछ नहीं बोल रहा. ओके, तू बोल दिया जो तूने बोलना था. अच्छा जी, लुकेंद्रा त्यागी आप कह रहे हैं why astrologers come before the India Pakistan every time? That's a very good question. Actually सवाल लुकेंद्रा त्यागी, is that correct, right? So भाई त्यागी साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. उन्होंने भी दुकान चलानी है यार, जरा समझा कर. ये तो उनको भी बेचारों को थोड़ी सी टेंशन चाहिए. Maybe that's why. आगे पीछे नजर नहीं आते वैसे. ठीक है. Yeah, that's true though, but it's very interesting. Desperation में फिर उनकी help त्यागी जी का भी नाम लिखना चाहिए. मैं त्यागी जी का नाम लिखना चाहिए. Right? Astrologer वाला सवाल है. अच्छा जी, HZQ, the good soul HZQ आपका सवाल है. My question is from Ajay Jadeja. That when Maxwell played the unbelievable innings against Afghanistan in the World Cup 2023, you were in the Afghanistan dressing room that time. Kindly tell us what was really going on in the Afghanistan dressing room at the time. त्यागी जी है. नहीं, ये the good soul HZQ. सारे सवाल त्यागी नहीं कर रहे. मैं सोच रहा हूँ मैं अवॉइड कैसे करूँ इस सवाल को. गुड सोल आप जरूर हैं. मेरे को लेकिन यार ये सोल जैसे मेरे से 96 वर्ड होता है ना, वही बोल रहा. ये भी नहीं होगा. इट इज वेरी सिमिलर, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो भूली नहीं जाएगी. एक चीज अच्छी है कि ड्रेसिंग रूम में सिर्फ मैं या एक दो लोग और थे, क्योंकि 11 लोग फील्ड पे थे. जो हमारे कोचेस हैं वो सारे ऑन ग्राउंड बैठा करते थे, खिलाड़ी बाहर थे. आई थिंक डिसबिलीफ था एट द एंड जो हुआ है, और कोई सोच नहीं सकता था उस दिन जो हो गया कैसे हो गया. ये मैं अब कह सकता हूँ, हाइंडसाइट में तो हमेशा कुछ सीखने को मिलता है. आई थिंक कई बार आपको यूजुअल को छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब इतना वक्त चले उल्टी तरफ, आप बेसिक पे ही लगे रहे ना,
तो फिर आपकी ही गलती है। तो मैं मानता हूँ गलती हमारी है कि हमने कुछ और नहीं किया उस दिन, ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर आप 100 बार खेलते हैं और 99 टाइम्स अगर सक्सेसफुल होते हैं तो आप स्टिक करते हैं उस पर। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि मेरी टीम जो है अफगानिस्तान की, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उस दिन, और जो वो पहले दिन करते आए वो उन्होंने उस दिन भी किया। बट वो दिन ही ऐसा था जैसे 96 में वकार को नहीं भूल सकते, हम मैक्सवेल को नहीं भूल पाएंगे। अरे वाह। नहीं, because these are days that happen and they never happen again. And I don't want to forget that actually, to be honest, Yeah, because yeah. that's also part of my life. Yes, Part of my life. Yeah. Absolutely. अरे बट उससे पहले भी तो कितने साल थे, इसने 100 बार आउट किया होगा मुझे, वो नहीं कोई याद रहता। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, ये वो वाली आदत है। अच्छा। अब्दुल रहमान हमसे उनका बड़ा कमेंट आया है। ये वसीम भाई, हम तीनों को तो खास तौर पे मैं बहुत परेशान हूँ। अब्दुल रहमान का एक्स पे ट्वीट है, मैं बहुत परेशान हूँ फ़खर भाई, क्योंकि मिसबा भाई नहीं है। आप अब कौन बताएगा हमें कि मैच फंसा हुआ है या नहीं? ये क्या है, हमें भी मैच लव मिसबा, ग्रेट गाय, बेस्ट कैप्टन वी हैड, ग्रेट प्लेयर। जब हमारे साथ 3 साल काम किया उसको मिस कर रहे हैं एक्चुअली। ही वाज ग्रेट ऑफ द फील्ड एज वेल एंड ऑन टेलीविजन टू। ये पैन ऑफ द फील्ड एंड ऑफ द पहले माफी हो तो क्यों नहीं मांग लेते हैं किदे कोलो मिसबा को? नहीं, मिसबा हर मैच माफी दे दी अगर कोई गलती मुंह चु गाल निकल जाए। नहीं, मिसबा हर मैच हो रहा था मिसबा को लगता है मैच फंसेगा ही फंसेगा। और मिसबा कमेंट्री करता है बैठा हुआ ना, जब ग्रीन रूम में वो कमेंट्री कर रहा होता है, वो चुप नहीं होता। तो बड़ी दफा मैं कहा चुप कर जा, नहीं चुप होता। हम सो रहे होते थे ना। पॉजिटिव आदमी, मतलब किसी भी मैच में उसे लगता है कि ये मिसबा का कमाल ये है कि आप यूं सोचें कि मैक्सवेल और इंग्लिश बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 20 रन चाहिए और 200 गेंदें पड़ी हैं, और मिसबा कह रहा है मैच फंस जाएगा। पॉजिटिव। Anyway, we do absolutely. इनका भी मैंने नाम लिख लिया, अब्दुल रहमान का मिसबा वाला। फहद लतीफ का मैसेज पढ़। जी, फहद लतीफ, question for Wasim bhai. If Genie offered you a chance to go back in time and win the 1999 World Cup as captain, but in return you wouldn't be part of the 92 World Cup winning team, would you take that offer? अगर जीनी जो है, एक जिन आए, आपको पहली बात तो अगर आपको वो मिले लैम्प, आप उसको यूं करके रगड़े, उसमें से जिन निकले, बीच में से फखर निकले। इससे पहले मैं जवाब दूं, एक गरीब बंदे को ना, ये बड़ा पुराना जोक है, गरीब बंदे को ना भूख लगी होती है, वो जाता है, एक तरबूज मिलता है आगे, बड़ा होता है, बड़ा परेशान होता है, वो तरबूज तोड़ता है खाने के लिए, तो एक जिन निकलता है, कहता है क्यों कमे मेरे आका, कहता मैंने यार कोठी बना दे, कहता बड़ा हूं मैं, आप तरबूज दे तेन कोठी कितने बना दे। That's a good one. Anyway sir, तो वो आपको जो है वो अपना चिराग मिला, अपने चिराग को रगड़ा, अंदर से जीनी निकली, जीनी ने कहा वसीम अकरम ये सवाल है, जवाब दें कि 99 का वर्ल्ड कप, अगर आपको ये मौका मिले टाइम में कि आप टाइम ट्रेवल करके 1996 वाला वर्ल्ड कप जीत सकें और 92 वाली टीम में आप हिस्सा ना हो, तो आप क्या लेंगे? मैं नहीं चेंज करूंगा। आई वांट माय कैप्टन, माय इमरान देयर 92 वर्ल्ड कप। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी, दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, वो रिग्रेट है 99 का, बट हार जीत होती है, ऑस्ट्रेलिया वाज द बेटर साइड दैट डे। वो जिन्हीं को और कुछ मांग लांगा है नहीं मांगागा, बस उनको और मैच ले ले यार। अच्छा जी, राहील ये बिल्कुल सामने है, वेरी गुड। एक सेकंड, आप ही के फोन पे ना बहुत अच्छा सवाल है यार, आगे पीछे कर दिया आपने। राहील कह रहे हैं 26 यार्डर आपका एक्स हैंडल है, राहील कह रहे हैं मोस्ट एपिक स्लेज यू गाइस रिमेंबर फ्रॉम योर प्लेइंग डेज, बाय द वे अमेजिंग शो। राहील, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं बस स्लेज हम टीवी पे थोड़ी ना बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा पाउडर, सुर्खी पाउडर लगा के कह देना। नहीं सुर्खी पाउडर नहीं लग सकता जो स्लेज कह रहे। सबसे ज्यादा स्लेज क्या मिला आपको? बाय द वे शुरू में 2 मुल्कों की तो समझ ही नहीं थी आती, ऑस्ट्रेलियन वेस्ट इंडियन, समझ नहीं थी आती क्या कह रहे हैं, वो एक आधा लफ्ज समझ आता था बस। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, जैसे मैंने अभी ब्रेक में बात कर रहे थे ना, जो मेरे मैथ्यू एडन ने मेरे साथ किया था, बट दैट सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट के यू नो I'll think of something, I'll come back to it. शॉट मारी और उसने कहा go and fetch it. ये बड़ों ने कहा नॉर्मली कुत्ते नु क्या जांदा ना, go and fetch it. yeah. Okay, I don't know why you walked into that one, Waqar. It's like you
देखो सवाल You आया bowled a था, bouncer and then went to bat it. no, सवाल आया था and I think the answer वो deserve करते थे तो doesn't really matter. आपने मुझे रजिया बनाया हुआ तो ये तो कोई मसला ही नहीं. अच्छा जी, जुल्फिकार _786_2 आपका सवाल है कि tomorrow is a very big game, India Pakistan, but we are extremely disappointed with the last performance of Pakistan. Should we have any hope for a positive result for Pakistan tomorrow, boys? Go on, Jaddu. Yeah, of course you should have a hope. You've got Yeah. 11 men who are going to come onto the ground. Yeah. If they have no hope, they should not come. And it's a game of cricket. Yeah. I'm sure, it's a game. मैं तो लास्ट वर्ल्ड कप में तो आपको पता है मैं कैसे देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है. पिछले मैच में भी जो लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच था वो बुमराह जब गेंदबाजी करना आया तो 20 या 24 रन बचे थे. वो एक बॉल अगर आपकी तरफ चली जाती तो या वो रिजवान वो शॉट ना खेलता. रिजवान वाला शॉट मैं किसी इंडिविजुअल पे नहीं जा स्वीप ना मारता. I think you always have hope when you play against a side and there will be a day when you'll overcome, but you have to believe that today is the day that it might turn. The key word there is believe. आपको हमेशा believe रखना चाहिए, यकीन होना चाहिए आपको अपने ऊपर. और we'll discuss tomorrow about the game, but I think कल के मैच में before the game देखा जाए इंडिया की फॉर्म, पाकिस्तान का पहला मैच, इंडिया का पहला मैच 65-35, but कल 40% Pakistan, 60% India, so that's a close kind of thing. Why do you say that, Wasim? 60-40? Because पाकिस्तान इंडिया के मैच पे प्रेशर दोनों टीमों पे होगा ना, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होगा. इंडिया पे भी प्रेशर होगा. अच्छा. And it's an important game for India too. Yeah. So जुल्फिकार आपको सिर्फ ये बताते चलें कि जैसे अजय जाडेजा ने कहा कि बिलीव होना चाहिए, आपको हमेशा बिलीव रखनी चाहिए. So it's very important that आपके यकीन की जीत होती है, यकीन की, बिलीव की विक्ट्री होती है. अगर आप मैच हार भी जाए ना, आपकी बिलीव की विक्ट्री होनी चाहिए कि यार मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैं लड़ा, मैंने पूरी कोशिश की, एंड आई एम गोइंग टू होल्ड माय हेड अप हाई विद प्राइड इवन दो आई डिडंट विन द गेम. बट क्या चीज है कि यकीन की जीत जो है वो बड़ी जरूरी है. जी निखिल. एंड इन स्पोर्ट इन एनी केस जब भी आप you try and forget भाई पिछले मैच में things didn't go your way, you try and learn from that. But at least you back yourself कि भाई हमने प्रयास तो किया. It's better to try and fail rather than fail to try. And you go back with that same belief जो अजय भी कह रहे हैं कि भाई वो पुराना चला गया, जो गलतियां हुई थी उस गलतियों से सीखे, and then you draw up that plan. And most important, I think, in that high voltage game, the emotions would be high. If you can narrow it down to just a few processes and keep thinking about the processes, don't look to get ahead of the game. That makes a big difference. Don't look to get ahead of the game. I think for both the sides. That's what makes all the difference. Yeah, absolutely. Let's just quickly choose our winner. कि ये बॉल किसको डिस्पैच करनी चाहिए डीपी वर्ल्ड की तरफ से. So you had a comment from खिचड़ी के रजिया गुंडों में फंस गई. Then you had त्यागी saying कि भाईजान ये एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ से आ जाते हैं जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है. गुड सोल का सवाल था अजय जाडेजा भाई से कि वो कैसे उनको उस पर क्या हुआ था ड्रेसिंग रूम में जब हमारी सोल को उसने सोल झिझोड़ी थी. अब्दुल रहमान का जो था वो कमेंट जो था वो भी बड़ा मजेदार था कि मिसबा जो है वो अब हमें कौन बताएगा कि मैच फंसा हुआ है. मेरी माने तो मिसबा का जो सवाल है उनको देखिए क्योंकि वो आपके पुराने इस शो के मुरीद हैं. हाँ ये भी है. कमेंट था या क्वेश्चन था वो? नहीं कमेंट था कि अब हमें कौन बताएगा. मैं बहुत गमज़दा हूँ कि मिसबा नहीं है क्योंकि अब हमें कौन बताएगा कि मैच फंसा. ये सटली शायद ये भी बोला हो कि आप मजाक ही करे जा रहे हो, यहाँ क्रिकेट की कौन बात करेगा. मिसबा को मिस कर रहा हूँ. ये भी है. So who do you think? Misbah. Let Nikhil decide that. I'd go with Razia because it's रजिया कहाँ कैसे है? मैं I will go with रजिया. मेरी तरफ इशारा किया. आपकी तरफ इशारा किया. रजिया. ड्रेसिंग रूम का जो एक environment है that happy with a little bit of cricket, a bit of fun, वो सवाल #AskTheRoom वैसे comments भी आने चाहिए. ऐसे है. So there is one vote for Razia. Waqar, who do you vote for? Also Razia? मैं तो रजिया तो मैं क्यों बता. और आज वाकई आप लोगों ने मुझे रजिया बनाया था. Wasim, for you? I'm fine with whoever you guys go with. Razia is fine. Razia is fine with you, and for you, I'm a team man. You're a team man. All right. So, Khichdi, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो. That signed cricket ball is heading your way. It'll be dispatched by the DP World team. Khichdi, आपके इस पे X handle के ऊपर you'll get a direct message from our team in a couple of days, and they will take your address and they'll make sure that that ball is delivered to you. All right, folks, we're almost coming to the end of the evening here in the DP World dressing room, but
tense moments ahead now. Actually, tense few hours ahead now because tomorrow is the mother of all games. And जिस तरह के आपने बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे बात की होगी कि ओए ओए पता नहीं क्या होने वाला है. This is a cricket match between Pakistan and India tomorrow, live from Dubai International Stadium, the Ring of Fire, and it is going to be really great to see India and Pakistan one more time face to face in a cricket ground. Here is what I'm going to ask you guys. सबसे पहले Nikhil, Ajay, what's going to be your color tomorrow? Look, you can't be a chameleon, can't be changing color. Yes. I still stick to my color, my blue. Yeah. There's no doubt about it. But like you said, it's a game of cricket, and I would appreciate a side, if they beat us, I would be, disappointed for my side. But, I'd be happier for the game of cricket. There's no doubt about it. Absolutely. Colors should never be, different. There you go. If it makes you happy, I can wear green tomorrow. That's so very kind of you and very No, sweet because, of I you. mean, We really appreciate it. It's not what you wear outside, it's But what that you wear should be the inside. spirit. That should be the Exactly. spirit. This is what I meant. Yeah. That's the spirit. But you've actually narrowed that down. I mean, बिल्कुल आपने उसको जो है ना सही तरीके से summarize किया है. Wasim, your thoughts about this game because every other news channel and अभी हम लोग break में मैं देख रहा था कि पता नहीं क्या खप मची हुई है. And then when we were doing the promo, this was the thought that we had. कि look, we got to talk about the cricket. It's and a that's game enough end of the day. I've got to give you credit for that, not we. You came up with that. No, it's a team effort. Here in the dressing room, it's a team effort. You It's not guys, you wrote the script and But everything. man of the match होता है ना, Yeah, make you man of the match. share कर लेना. Again a team. Yes, I share it with all of you. Yeah. Bakar, So what's in that box then? that's $1 million question. अंदर रजिया की रजाई पड़ी हुई है. लम्बे बहुत है. Yes, and Nikhil for you. Your thoughts for the game tomorrow because everybody hypes up the game so much. I want you guys to say It is a special game. So genuinely, I feel, at the end of the day, top-notch cricket, treated like sport, and that's what you want to see. Whichever team wins, you go out there and say, on that particular day, aaj ka match, ye khele, acha khele, wo jeet gaye, and you give credit to that side. I mean, you don't need to build that sort of hype, and trust you me, more than half of the guys in either side of the dressing room after the game, they're best of friends. Yeah. Yes, absolutely. Bakar. I am honestly, I'm all for the hype. I'm all for the hype. लेकिन क्या है कि उस hype की एक लिमिट होनी चाहिए और उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए. आई थिंक बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी चाहिए जो हम रोज यही खप डाल रहे हैं ना कि लुक टॉक क्रिकेट, लेट्स टॉक क्रिकेट. आप जितने भी बैठे हो, पाकिस्तान अच्छी टीम है उनको अच्छा बोलो, इंडिया अच्छी टीम है उनको अच्छा बोलो, प्लेयर्स की तारीफ करो, बुरा खेले उनको क्रिटिसाइज करो, नो डाउट इन दैट, इसमें वो नहीं, लेकिन एक बाउंड्री से बाहर ना निकलो. दैट इज व्हाट आई फील. क्योंकि अगर हाइप नहीं क्रिएट की जाएगी ना इस गेम की, क्योंकि इट्स अ बिग गेम, It is a big game. it's a big game, so we have to create that hype ताकि we get eyeballs, we should sit and watch that game and enjoy that. Yes. That's the time of sort of enjoyment. ये जो 7 घंटे 8 घंटे जो मैच होगा, उम्मीद है कि पूरा मैच होगा और वो होगा तो that will be like an entertainment. ये साल 2 साल में एक दफा आता है ये सीन, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इतना खेलता नहीं है. So this is a time where we should all just, हम तो कर बैठ के देखेंगे ही, पर दुनिया भर में इसको क्रिकेट को एज अ क्रिकेट एंजॉय किया जाए. One very important thing, ये बड़े आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको सारे को बयान किया है कि it is just a game that you keep saying Wasim that it is a game that we must and that boundaries need to be set. एक वो boundaries बनानी बहुत ज़रूरी है. तो दोस्तों कल जो भी होगा वो होगा, कल देखी जाएगी, कल को कल निपटाएंगे और हम दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे. मगर याद रहे कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक खेल है. ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारी टीम जीते, हमारे मेहमान चाहेंगे कि उनकी टीम जीते. एंड at the end of the day, we've got to celebrate a good game of cricket. Just a quick reminder to you. T20 के वर्ल्ड कप में अगर आप लोगों को याद हो जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था और पाकिस्तान इंडिया के जो मैच हुआ था, outstanding game of cricket that we saw. Yeah. We saw Virat Kohli taking on Haris Rauf, those big sixes that he played and took the game all the way in the end. What did we all do? We celebrated that game of cricket. कि यार क्या मैच देखा है आज हमने. Definitely, Yes, we did. वो हमने अपने लड़कों को भी अप्रिशिएट किया था हारने के बावजूद, क्योंकि यार मैच बना हुआ था. And India of course played a great innings. Virat Kohli played a great innings. So again, keep that spirit alive. Let's just be positive about everything that we do with this match. कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कोई गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए. And we should enjoy the game of cricket. और 96 दी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए. उस दिन बाउंड्रियां छोटी थी. नहीं बाउंड्री के अंदर तो चलेगी. बाउंड्री के अंदर वो जो 2 हैं, मतलब हम भी थे वो अंदर,
अंदर तो लड़ाई होगी होगी होनी चाहिए और ना, होनी भी होनी चाहिए। लेकिन रिस्पेक्ट होती है। मैं कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं इंडिया पाकिस्तान अब बात करते हैं, मैंने कहा, और ये तो प्रूफ है, अंडर 19 से हम यार दोस्त हैं। आई थिंक बड़ा भाई और छोटा भाई, वो जो मर्जी, जैसे घर पे क्रिकेट सारे खेलते हैं आप लोग घर पे क्रिकेट, दूसरे मोहल्ले की टीम से जीतने का मजा अलग होता है, लेकिन अपने बड़े भाई को आउट करके, अपने छोटे भाई को आउट करके जो मजा आता है ना, वो इस मैच में मजा आता है। तो इट्स अ रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, इट्स नॉट एनिमोसिटी, बट देयर इज अ फाइट, देयर इज नो बिगर गेम देन इंडिया पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट। एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन हु इज वाचिंग, if you, I mean, I don't know, Pakistan also is probably the same, no matter what you've done in your life, if you do well against India, if you're a Pakistan player, and if you do well against Pakistan, this is your opportunity. Anybody who looks at an India-Pakistan game and feels pressure is going to lose, but the one who looks at an India-Pakistan game and sees, this is my opportunity of a lifetime, then it's 96. चलो करिए भाई, चलिए। कह रहे हैं दुकान बंद करो। कम कर, बात छोटी क्यों नहीं हो तो है ना? बस लंबी होगी कि जाना है ना यार इसके मुझे बाद। पता है ना, आई नो भाईजान की कमिटमेंट तो उसी कुछ दसे ही नहीं इंडिया पाकिस्तान, हम बचपन में यही देखते रहे हैं बचपन से। नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का, मैं बताऊं क्या फर्क है। नहीं, I'm honestly, this is I a fact. love it. I'll tell you how we look at Pakistan, or when we looked at Pakistan at that time, is how Pakistan probably looks at Indian team and says, बुमराह को जब तक आप मारोगे नहीं, और आप वर्ल्ड क्रिकेट में देख लें, इंडिया खेल रही होती है किसी भी स्टेज में तो बुमराह आ जाता है बॉलिंग करने, अगर उसका दिन अच्छा गया तो वापस आ जाती टीम। दैट वाज व्हाट वसीम अकरम वाज फॉर पाकिस्तान। Yes. You could never beat Pakistan unless you beat Wasim Akram. Yeah. So it's similar like that. So they've got to think that way, that एक दिन तो कभी किसी का आएगा। यार जबरदस्त। और भी बताए ना कुछ आप अब इंडिया पाकिस्तान। बात कर रहे हैं और मैं क्या जल्दी शो कर रहा तूने क्वेश्चन पूछा इसलिए हंस रहा था, ये बात लंबी कर दी। चलो जी, पैक करो। We'll see you tomorrow. Thank you for watching. This is the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam. You're watching 10 Sports and our continued coverage of the ICC Champions Trophy. We're going to call it a night now, guys. We are going to be back here tomorrow morning again for the presentation of the India-Pakistan game. It's a big game. Join us. Make sure that you're there. Bring your family, friends in front of the screen and join us. With that, I would say, it bit Gulkan Sadi Dukan Bad.